अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस क्लास में आप सीखेंगे थ्री टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। नंबर वन, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। नंबर टू, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। नंबर थ्री, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आपका कंसेप्ट बेसिक्स ऑफ प्रेपोजिशन पर क्लियर हो। अगर आपका कंसेप्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, उस पर पहले से ही मेरा एक डिटेल लेक्चर रिकॉर्डेड है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले आप उधर से कंसेप्ट हासिल करें, बाद में आपको टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन सीखने में आसानी होगी। So now let's get started our topic. There are three types of preposition, and these three types of prepositions depends on three different conditions. And what's the conditions? Number one, when the thing or event is happened. ये preposition जो है, ये type of preposition जो है, ये हमें बताएगा, ये हमें time provide करेगा कि कब ये चीज या ये event कब हुआ. Because it's known as preposition of time, इसलिए इसको preposition of time कहा जाता है. Let me give you some word and sentence examples. On, in, at, before, after, and so on. Let me understand it in a sentence. For example, I say my birthday falls in January. In this sentence, a linking word, hence its a preposition is in. मैंने आपको बताया कि in हमारे पास preposition of time है, ये हमें टाइम प्रोवाइड करेगा कि एक चीज कब हुई या होगी. इसमें हमारे पास जो लिंकिंग वर्ड है, preposition है, वो in है और ये हमें बता रहा है कि बर्थडे कब है, जनवरी में. So when my birthday falls in January. Now come to the another example. My vacation ends on Monday. In this sentence, preposition is on. On is a preposition of time, जो कि हमें एक point of time दे रहा है. When my vacation ends on Monday. Now come to the second type and second condition of preposition. This type of preposition will provide us a place where the thing or event is occurred. Where the thing or event is occurred के कहाँ पर कोई चीज हुआ, ये हमें वो प्लेस और वो लोकेशन प्रोवाइड करेगा. preposition of place. तो इसलिए इसको preposition of place कहा जाता है. Now let me give you some word examples. On, at, in, under, above. अब आप सोचेंगे कि ये जो दो वर्ड है, ये तीन वर्ड जो है on, at and in, ये तो इधर सेम इस preposition ऑफ टाइम में भी है, लेकिन जब अब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तो आप देखें कि ये है तो सेम वर्ड्स, लेकिन ये डिफरेंट मीनिंग्स में इस्तेमाल होते हैं. नाउ कम टू द सम सेंटेंस एग्जांपल एंड मेक इट क्लियर. आई से sorry, the books are on the table. In this sentence, on use as a preposition of place, जो कि हमें बता रहा है कि कहाँ पर ये किताबें रखी हुई है. अगर हम इससे ये preposition हटा लें, so we don't know where the books are placed, before the table, behind the table, के किधर रखे हैं बुक्स. तो ये on जो है, ये हमें एक प्लेस बता रहा है कि हाँ the books are on the table, कि किताबें जो है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है. Now come to the another example.
The plane is just below the cloud. In this sentence, the preposition of place is below. So where the plane is just below the cloud. के प्लेन बस थोड़ा सा ही बादलों से नीचे है. तो ये है preposition of place जो हमें बताएगा कि ये एक चीज कहां पर रखी हुई है बनिस्बत दूसरे के. Now come to the last type of preposition. The last type of preposition will say us in which direction the thing or event is happening. कि किस डायरेक्शन में, ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा कि किस डायरेक्शन में चीजें हो रही है. Let me give you some words examples. Number 1, it, of, from, into, and so on. Let's understand it with some sentence examples. For example, I say we went to London last week. In this sentence, the linking word hence preposition of time is to. अब आप सोचेंगे कि इस सेंटेंस में भी जो आपने एग्जाम्पल दिया इसमें तो हमारे पास ये एक प्लेस है, इसने एक प्लेस प्रोवाइड किया, लेकिन नहीं, असल में इस सेंटेंस में हमारे पास जो प्रोनाउन है, ये हमारे पास इस सेंटेंस में प्रोनाउन है, तो उसका जो डायरेक्शन है, इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन ने हमें बताया कि वेयर वी वेंट इन लास्ट वीक, वी वेंट टू लंदन इन लास्ट वीक. नाउ गिव मी one another example to make it clear and more clear. He went up the hill. So in this sentence preposition of, इस सेंटेंस में हमारे पास जो preposition of direction है तो वो up है. up ने हमें बताया where he went up the hill. आई होप कि इधर तक आप टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन पर अच्छी तरह समझ गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ कुछ डिफिकल्ट प्रीपोजिशंस डिस्कस करूंगा कि किस तरह इनको आसानी के साथ और अच्छी तरह सेंटेंस में इस्तेमाल करना है. अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि कहीं आपसे क्लास मिस ना हो जाए. सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास.